Once upon a time, in a small town, an earl named David. He had the only daughter, her name was Lucy. Being of noble birth, she was educated strictly to become a noble ballet dancer. Oppositely, Kay's parents passed away early. Luckily, the Earl David accepted her as a house servant in his family. From now on, you teach her to do housework in this family. Although her situation was difficult, Kay was pure and agile. So she was loved by so much by other servants in that family. They was of the same age and were living in the same house, but they never made friends with each other. It was because their descent. To Lucy, Kay was inferior to her, so Kay was not deserved to make friends with. Thus, they never talked to each other. Kay was different. She secretly admired Lucy because Lucy lived in the arms of her parents, learning ballet from the most talented dancer. It was something she just watched from a distance. That spring, a very important competition took place. It was seeking the most talented ballet dancer. The winner would dance in the royal palace. This was a chance that many people dreamed about. Lucy, take a rest. You have rested for 4 hours. No, I need to perform the swan dancing well. I have to win this contest. This injury made her to stop practicing for several days. It made her so sad. Watching sunset from the windows, what was happening made her so shocked. Kay was dancing swan ballet very well. That was what she could not get it done well. But Kay even was performing with more difficult level. Impossible. Impossible. Actually, every time when Kay watched Lucy dancing, Kay would fill with admiration and dance unconsciously. Kay had to stand on tiptoe, run, jump to walk. It made her legs more resistant and flexible. Day by day, her skill became more and more excellent. So beautiful, Kate. You can participate the ballet contest with the dancing. I don't dare to dream about it. To Lucy, the scene that day really shocked her. I had to be the best ballet dancer. I could not lose to such a no-schooling girl. Lucy practiced all day. She might fall asleep right away because of tiredness, but the nightmare disturbed her sleep. She stepped outside as a sleepwalker. Little girl, dance hard without any improvement. You are so hard. Why don't you put your foot into me? I will bring you to wherever you want to come. More surprisingly, when she woke up, she realized she was in the storage. This storage always was locked before. In front of her eyes was a pair of fresh shoes. They were clean. It was totally different from the dirty room. What is the sound? Maybe I am too old. My ears does not work well anymore. Lucy tried again. She started to control her dance steps and the shoes. Weirdly, after she put on the shoes, she could perform the hard dancing easily.
The time of the contest to see talented ballet dancer came. Many people came early to register. Surprisingly, Kay stealthily came there. Certainly, it could not lack Lucy, a potential fate to be the champion. The contest began. Contestants took turns to show their potential. Everyone has their own talent, but no one catch the blue eyes of the board of examiners. Kay's turn came. She did not have any colorful dress or even normal shoes. Her untidy appearance made no one pay attention to her. However, everything changed when she started to dance the first steps. In barefoot, Kay passionated about the melody, flying with her passion as natural as normal. So many admiration eyes put on her every single movement. When the swan step was over, the room seemed to be bursted. Lucy saw everything from Kay's dancing, but she was not anxious as before. She was very confident because now she had the magic shoes. It was no shame of being a brilliant candidate. With the magic shoes and her tidy appearance, she made everyone admire right away when she appeared in the stage. All the room seemed to be hypnotized by her dancing steps. However, everything became out of control when the shoe suddenly would not obey Lucy anymore. Then they controlled her foot. She could not stop. She danced and danced continuously. Stop! Stop right now! Stop! Ow! So dangerous. Get out, little girl. Get Nguy down. hiểm quá. So Cứu cô bé. dangerous! Get out! Little girl, get down! Kay saw everything. She helped Lucy when Lucy was hanging by a thread. Ho! Ho! Don't drop your hand. Come on. I'm scared. I can't control my foot anymore. No, save me. Keep it up. Come on. Climb. What is it? Who are you? Don't scared. I'm Mary. I don't hurt you. You see, I just gave you to a hand. I'm Mary. 100 years ago, I was the winner of the contest seeking the ballet dancer. But Natty, one of the contestants, did not agree. She fought with me to get the reward of the contest, and she put me out of this banister. Don't do that, don't. The winner, the owner of the stage, it's me. No! It did not stop there. She used bad magic to create a magic so that no one could not get the reward. She would turn all contestants into stones.
Today, the contest is organized the first time after 100 years. The shoe you wore is mine, the symbol of my victory. They are under her spell. It's why you could not control your food. Now I will take it off, so everything will be okay, right? Right, take it off, Lucy. Not easy at all. Once you dance with these shoes, that means the vote started to take place. Now there's only way for you to escape from the vow, and you could save people turning into stones down there. What is it? The swan dancing, every single invisible brick you just saw in the place you need to step in order to break the vow of the matrix. But the matter is that they appear so fast and suddenly in the sky. Until now, no one can do it. It is not different from dancing in the sky. No one can do it. Right, no one can do it until I see you too. What do you mean? You two see, the invisible dancing steps appear so many and fast. It's very hard to fulfill if one person dances. Everything will be different if you two do it together. I saw you two dance the swan. You two are the keys to solve all these things. But without the shoes, I'm nothing. I can't do it. They are on your foot, aren't you? These shoes are the symbol of the winner. They know how to choose their owner. No one could dance with these shoes within 100 years until you appeared. Be confident, Lucy. I always admired you, Lucy. Thanks to watching your dancing, I learned how to dance. You are my teacher. And so on. Together with their confidence and solidarity, Lucy and Kate danced the swan in the unprecedented stage. It was on the invisible bricks. Every movement took place fluently at the same time. That single step was on the brick, appearing every minute correctly. That scene was wonderful as a fairy magic. Then they seem to have no distance about their social class. They just are two friends. They are two talented artists. Their excellent performance moved people's hearts. All the room was full of audience applause. This year's contest, we decided there are two winners to dance together in the Royal Palace. They are Lucy and Kate. Lucy, Kate. Lucy, Kate. Lucy, Kate. That spring, they together went to the palace and danced. They created a spectacular performance and received so many praises from the royal. From then on, the two friends became the most famous dancer and were loved by so many people. प्राचीन समय से डुक्का के पुराने जंगल ने अद्भुत रहस्यों और पहेलियों को छुपाया है। अंधेरी पहाड़ियों के पीछे जंगल के दिल में जीवन का स्रोत छुपा है। यह जंगल और इसके निवासियों को हर तरह की ताकत और उनकी रोशनी प्रदान करता है। लेकिन एक लाल सर्दी, जब जंगल सो रहा था, सिर्फ एक संरक्षक है जो देखभाल करता है। एक इंसान जो अंधेरे जंगल के रास्ते से जंगल में प्रवेश कर गया। वह आरा मिल का मालिक है। उसे अपनी नवजात बेटी को बचाने के लिए जीवन के स्रोत से कम एक बूंद की जरूरत थी। लेकिन फिर वह लौट आया और अपनी सेना के साथ पूरे स्रोत को कब्जा करने की महत्वाकांक्षा के साथ, और इसलिए एक भयानक युद्ध शुरू हुआ जिसमें कोई भी नहीं जीता, केवल हारने वाले थे। अंधेरे पहाड़ के पीछे अतिक्रमण करने वाले सभी लोग मारे गए। जंगल के संरक्षक ने सब कुछ खो दिया है, सिवाय प्राचीन शक्ति की गूंज के। और जब जंगल के वसंत में जागने पर उन्हें मानवता की गद्दारी के कारण एक भयानक परिणाम का सामना करना पड़ा। देखो, हमारे दुश्मनों ने क्या किया है। इस कारण से अब कोई भी इंसान अंधेरे पहाड़ पर कदम नहीं रखेगा। यह नया जंगल का कानून है। कई सालों समय बीत चुका है।
एक और सर्दी बीत गई। ओह, मैं बहुत लंबे समय से सो रहा था। मैंने एक अद्भुत सपना देखा था। यहाँ देखो, ये किसी भी एवोकाडो से ज्यादा सुंदर है। आखिरकार बचे हुए भिक्षु। आपको वसंत रातु की शुभकामनाएं। आओ माँ। काम करते हैं, लेकिन लोग बहुत मेहनती हैं। मैं उस गांव के सबसे बड़े लकड़ी के कंकाल के घर की बेटी हूँ। हालांकि मैं संपन्न हूँ, पर मैं हमेशा अपने गांव को याद करती हूँ। और यहाँ उच्च वेतन के लिए हल्के काम के अवसर लाओ। उठो। एक साधारण काम जो कल्पना से परे वेतन के साथ आता है। शायद इससे मुझे लियो चाचा की बीमारी का इलाज कराने के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाएंगे। ध्यान देना, ध्यान देना। आपके चाचा ठीक नहीं है। शिक्षक आ गए हैं, लेकिन घर जाओ, जल्दी करो। क्या आपने ध्यान दिया? वह व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो औषधियां हैं उनके साथ यह कठिन है। लियो को ज्यादा महंगी दवा चाहिए। वे दुबले पतले लोग क्या कर सकते हैं मैडम? आप इसे हमें दे सकती थीं। मुझे नाराज मत करो, ये मेरी त्वचा के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम लोग यह कर सकते हो तो मुझे उस छोटे से गांव में लोगों को खोजने की जरूरत होती। एक स्थानीय व्यक्ति को लेकर आओ जो इन 2 बड़े लड़कों को तुम्हारे घर तक ले जाए। बिल्कुल मालिक। क्या यहाँ सही वेतन वाली नौकरी उपलब्ध है? ओह, पहली बार कम आकर्षक वह आ गई। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी मैडम, जब तक आप मुझे वादा किया हुआ इनाम दें। बहुत अच्छा। इस थैले में जाओ और इस पत्ते को मेरे लिए खोजो। याद रखें, जितनी जल्दी आप इसे ढूंढेंगे उतना ही अधिक इनाम मिलेगा, समझे? भाई, फोन हमेशा उसके साथ रखना। इस समय जंगल में अंधेरा है। एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। नए वसंत का स्वागत है। मेरे जंगल के दोस्तों, मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात कहने के लिए बुला रहा हूँ। स्रोत ने मुझे सपने में बताया था कि अब समय आ गया है कि हम जंगल के लिए एक नया उच्च देवता खोजें। लेकिन जनाब, आप अब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अब समय आ गया है कि मैं अपने बच्चों में से किसी एक को चुनूं ताकि वह मेरी जगह ले सके। इसमें थोड़ी सी चिंता हो रही है। यह सर्वोच्च संरक्षक की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं है, बल्कि बूढ़े आदमी के स्वास्थ्य के बारे में है। वर्तमान में सर्वोच्च अभिभावक। विना, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम चुनी जाओगी, है ना? ऐसा मत करो, यह जीवन के पेड़ का विकल्प है। कोई भी सर्वोच्च संरक्षक बन सकता है। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। आप ठीक हैं? चलते रहें। क्या तुमने देखा? वह बहुत भोली है और आसानी से धोखा खा जाती है। उसे कैसे चुना जा सकता है? क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहोगी? जल्दी करो, बेकार इंसान। समझ नहीं आता कि मालकिन ने इस सबसे बेकार आदमी को क्यों काम पर रखा है। सावधान होकर चलें। हम आपके बचाव के लिए
यहाँ नहीं हैं। तुम बेकार आदमी, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक नौकर हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे अभी भी मालकिन का काम पूरा करना है। अगर बेकार हो तो नुकसान मत करो। खुद का ध्यान रखना। बेहतर होगा कि इस बदकिस्मत व्यक्ति से दूर रहे। उसे खींचने से गलतफहमी होगी। चलो चलते हैं। पहला पत्ता अभी तक नहीं मिला, लेकिन चेहरा एक विशेष व्यक्ति को ढूंढना है जिसके बारे में आपने केवल बड़ों की कहानियों में सुना है। अरे क्या है? राक्षस? जंगल का राक्षस? अब मेरा अंत है। एक व्यक्ति? जल्दी बोलो, क्या तुम यहाँ तबाही मचाने आए हो? मानव जाति में कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ कौन आया? उसकी क्या योजना है? कृपया कृपया मुझे क्षमा करें, मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ। इंसान जाति के धोखेबाज, तुमने यहाँ हथियार छिपाए हैं? नहीं नहीं, यह बांसुरी है, एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। आवाज गूंज उठी पूरे जंगल में। पहली बार वियना ने संगीत का अनुभव किया। इससे उसे गहरी भावनाएं महसूस हुई। संगीत पहली बार सुना है, अच्छा लगता है। और मैं पहली बार मैंने एक जंगल राक्षस देखा। मैं जंगल का राक्षस नहीं, मैं वसंत का रक्षक हूँ जो अंधेरे जंगल की रक्षा करता हूँ। मैं तो बस एक पत्ता ढूंढना चाहता था। इसके बिना मुझे मेरे चाचा का इलाज करने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे ही उसने पेंटिंग देखी, विना ने तुरंत पहचान लिया कि उसकी आंखें जिस चीज को ढूंढ रही थीं, वह जीवन का स्रोत था। मार्टिन की ईमानदारी से प्रभावित होकर वहना ने इंसान पर भरोसा किया और मार्टिन को पत्ता खोजने में मदद की। मैं आपको यह पत्ता खोजने में मदद करूंगा, लेकिन उसके बाद आपको तुरंत यहाँ से जाना होगा। बिल्कुल सही। वेनस ने मार्टिन को तैयार किया और उसे पवित्र जीवन वृक्ष तक ले गई। जिंदगी में पहली दफा मार्टिन ने ऐसा अद्भुत चमत्कार देखा। वह हैरत में पड़ गया। वाह, जंगल के दिल में ऐसा चमत्कार छिपा है। जल्दी करो, आज स्रोत चुनने का दिन है जो नए सर्वोच्च नेता को चुनेगा। सभी लोग यहाँ जल्दी आ जाएंगे। तुम इतनी जल्दी आ गई वेंडा, क्या तुम अभी भी अपना इरादा नहीं बदली हो? शांत रहे। आज रात एक ऐतिहासिक रात है। आज रात एक नया सर्वोच्च संरक्षक चुना जाएगा। क्या क्या? सही है, और मैं एक महान इंसान हूँ। अच्छा किया मार्टिन, इस बेवकूफ को भी कुछ मिला। तो वेना और मार्टिन जब संगीत में डूबे हुए थे, तब उनका पता लगा लिया गया था। वे चुपचाप जीवन के स्रोत वृक्ष तक उनका पीछा कर रहे थे। अरे नहीं, धोखेबाज का सामान। मैंने आपको वह पाने में मदद की जो आप चाहते थे, फिर भी आपने विश्वासघात करने की हिम्मत की। नहीं, अभी भी। तो यह तुम हो, तुम ही वह गद्दार हो जो इंसानों का साथ देती हो। यहाँ है, मैंने पत्ता ले लिया। अब वापस चलो, यहाँ और रहने की जरूरत नहीं। हाय मूर्ख, मैं इस छोटे से पत्ते को क्यों लाऊं जब मैंने पूरा पेड़ देखा है। कल्पना कीजिए, अगर मेरे पास पूरा पेड़ होता तो मालकिन मुझे कितना पैसा देती। तो हजारों वर्षों के बाद मनुष्यों और वन देवी देवताओं के बीच
फिर से एक महान युद्ध छिड़ गया। इस लड़ाई की शुरुआत इंसानों द्वारा हुई थी, जिनके पास पुराने युद्धों की तुलना में हजारों गुना अधिक आधुनिक हथियार थे। जीवन का स्रोत। कृपया चुने और उत्तराधिकारी को दिल की रक्षा के लिए ताकत दें। कृपया आशीर्वाद दें। तो अगला उच्चतम वन संरक्षक चुना गया है। अनोखी बात यह है कि इस बार एक इंसान को भी चुना गया है। बैक्टियन, तुम मेरे साथ नहीं हो। महोदय, वह सब अराजकता के लिए क्षमा चाहती है जो मेरे कारण हुई थी। जीवन का स्रोत हमेशा सही व्यक्ति को ढूंढ लेता है। अब जंगल के पास 2 रक्षक हैं, क्योंकि यह अंधेरे जंगल के दिल और जीवन के पेड़ की रक्षा करेगा। मार्टिन जंगल के किनारे की रक्षा करेगा और जो लोग जीवन स्रोत के लायक हैं उन्हें चुनेगा। उदाहरण के लिए आपके चाचा लियो मार्टिन को वेन्ना और पेड़ की रक्षा करते देख किसी को भी अब उस पर शक नहीं रहा। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मुझे छूने की कोशिश मत करो। ये कहां है? तुम दोनों बेकार हो। तब से जंगल और मानवों के बीच का प्रतिबंध हटा दिया गया। ईमानदार और शांति प्रिय लोग मार्टिन द्वारा चुने जाएंगे, जो मानव जाति का सर्वोच्च संरक्षक है। जंगल के दिल में इलाज के लिए हजारों साल बाद इंसान और जंगल के संरक्षक शांति से साथ रह रहे थे। एक दूरस्थ भूमि में, जहां बर्फ ने हर रास्ते को ढक लिया है, एक बर्फीली महल में, उस महल के सबसे पवित्र कमरे में एक विशेष घटना हो रही है। कमरे के केंद्र में बर्फ की मूर्ति में बर्फ के कण एकत्र होकर एक सुंदर युवा लड़की का आकार बनाते हैं। तब से स्नो क्वीन जाग गई है, जो एक नई सर्दियों के मौसम की शुरुआत की घोषणा करती है। वापसी पर स्वागत है स्नो क्वीन। मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब मैं आपकी ड्यूटी को सौंप रहा हूँ। शुभकामनाएं। धन्यवाद। हर कोई, मैं एक सुंदर सर्दी बनाऊंगा। कहानी ऐसी है कि 4 देवी देवता मौसम की देखभाल करते हैं। वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत। वसंत जीवन शक्ति लाता है, प्रजनन का समय होता है। यह रंग बिरंगे फूलों का मौसम भी है और यह आमतौर पर लोगों का पसंदीदा होता है। गर्मियों, सुनहरी धूप का मौसम आमतौर पर फसलों और फलों के लिए कटाई का मौसम है। शरद ऋतु रोमांटिक और शांत है, जो लोगों को शांतिपूर्ण और सपने देखने का समय देती है। सिर्फ सर्दी ही ऐसी है जिसकी ठंड से शरीर कांपता है और जीव जंतु जैसे सो जाते हैं। इस मौसम को सभी लोग पसंद नहीं करते। बर्फ की रानी बाकी सभी देवी देवताओं से थोड़ी अधिक ठंडी है, इसलिए बर्फ की सफेदी पसंद करने वालों के अलावा कई लोग शिकायत भी करते हैं। वे चाहते हैं कि बर्फ रानी जल्द ही दूर चली जाए।
पता नहीं यह ठंड कब तक चलेगी। सर्दी का मौसम सच में कुछ नहीं देता, जल्दी खत्म हो। सर्दियों के आगमन ने शहर के लोगों का पूरा जीवन बदल दिया है। आमतौर पर स्नो क्वीन हर 4 महीने में इलाज करती है। वसंत ऋतु आने तक वसंत की देवी को कार्यभार सौंपना था, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत अजीब था। इस साल की सर्दियां पिछले सालों से बहुत ज्यादा गर्म हैं। इतनी जल्दी गुजर गईं कि लोग हैरान रह गए। सिर्फ 3 दिन बीते हैं और सर्दियों के निशान लगभग पूरी तरह से मिट चुके हैं। इस साल सर्दी इतनी जल्दी क्यों चली गई? बस कुछ ही दिन थे। बिल्कुल सही, आप अभी भी जन्मदिन से पहले हैं। हे भगवान, कुछ भी चलेगा, लेकिन सर्दी जल्दी खत्म हो गई। क्या हम जल्द ही सब्जियां नहीं उगा सकते? यह तो खुशखबरी है ना? कुछ लोग सर्दियों की कम अवधि से खुश हैं, जबकि कुछ इसे लेकर दुखी हैं, लेकिन उन्होंने भयानक घटना की पूर्वानुमान नहीं किया। बर्फ की रानी गायब हो गई। केवल 3 देवी जानती हैं कि स्नो क्वीन का रहस्य कितना गंभीर है। ये क्या है? सर्दी तो सबसे महत्वपूर्ण मौसमों में से एक है। इसे 4 महीने तक बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन अभी, हाँ, मैंने अभी टोनी को शिफ्ट सौंपी है और सिर्फ 3 दिनों की छुट्टी ली है। शायद वह आलसी थी या सर्दियों से नफरत करने वालों के बीच खो गई। नहीं, ये स्नो प्रिंसेस का असली स्वभाव नहीं है। वह थोड़ी ठंडी है, लेकिन बहुत जिम्मेदार। हमने कभी भी कोई मिशन अधूरा नहीं छोड़ा। हमें स्नो क्वीन को खोजने के लिए लड़ना होगा। इस समय के दौरान आप स्नो क्वीन के कर्तव्यों को संभालें। लोग नई फसल के लिए बीज बो रहे हैं। अगर मैं शरद ऋतु को और लंबा खींच दूं, तो वे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आपने कहा है, इसलिए हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। कार्य विभाजन के बाद शरद ऋतु और गर्मी की देवी तुरंत बर्फ रानी के निशान खोजने के लिए निकल पड़ी। वसंत की देवी, वह भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। हे भगवान, ये कितना अजीब है। बहुत सुंदर। देखो, मैंने अभी जो आलू की क्यारी लगाई थी, वह बड़ी हो गई है, तो जल्द ही फसल काटी जाएगी। वसंत वास्तव में अद्भुत है। उसे नीचे उतारो, उसे नीचे उतारो। वसंत की रानी। वाकई एक व्यस्त दिन था। हर कोई वसंत ऋतु को पसंद करता है। हम इसे अच्छी तरह कर सकते हैं। आप आराम से सर्दी को ढूंढने जा सकती हैं। बहुत दिनों की खोज के बाद भी जैसे कोई निशान नहीं मिला। बहुत थक गया। हमने बहुत सारी जगहों की यात्रा की है। अब यहाँ खोजने के लिए और कुछ नहीं बचा है। देखो, क्या यह है? निशानों का पीछा करते हुए अजीब बात है। निशान सीधे बर्फ के महल की ओर जाते हैं, जहां बर्फ की रानी को जगाया गया था। यह बर्फ का महल है। क्या बर्फ की रानी अभी भी महल में रहती है? सोचकर देखो तो एक लंबा महल एकमात्र स्थान है जहां हमने अभी तक कोशिश नहीं की। चलो अंदर जाकर देखते हैं। महल के अंदर कदम रखा। इस समय गुप्त कमरे से बर्फ पूरे महल में फैल गई थी। देखिए, यह है। तुम बर्फ के अंदर हो और इस दरवाजे को खोल सकते हो। अगर हम भूल जाएं तो गर्मी का मौसम, जो सर्दी के विपरीत है, अगर हम बर्फ को छूते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे। वह थोड़ा अधिक कपड़े पहनता है, लेकिन बर्फीली औरत की ठंड के सामने मैं नहीं जीत सकता। बस एक तरीका है। शरद और ग्रीष्म की रानी वसंत की रानी से मिलने के लिए खेतों में गईं, जो किसानों को खेती में मदद करने में लगी थी। सौभाग्य है, आप यहाँ हैं। हमने स्नो प्रिंसेस को ढूंढ लिया है।
क्या आपने स्नो क्वीन को ढूंढ लिया है? कहाँ पर? ये बर्फीले महल में होने जैसा है, जैसे एक कांच के कमरे में। हम इसे खोल नहीं सकते। अब सिर्फ तुम ही इसे कर सकती हो। क्या मैं? क्यों? एक चमकदार सूरज की किरण, कोमल और आसान, बस इतना ही कि बर्फ के कमरे को पिघलाने के लिए पर्याप्त हो, बिना स्नो क्वीन को नुकसान पहुंचाए। हमें तुरंत वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हुआ। नहीं, क्या आप लोग नहीं देख सकते कि मैं व्यस्त हूँ? यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी मदद की जरूरत है। आप क्या कर रही हैं? वो बच्चा जिसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें सर्दी वापस लानी होगी। किस काम में मदद चाहिए? क्या मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ? जल्द ही वसंत आना अच्छा है। देखो, यहाँ के लोग कितने खुश हैं। ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। अगर इसका उल्लंघन किया गया तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। क्या तुम जानती हो? गंभीर परिणाम? आपका मतलब हरे भरे पेड़, लहलहाती फसलें हैं। जब स्प्रिंग लॉर्ड ने असामान्यता को पहचाना तो खतरा करीब था। सुनामी की लहरें आ रही हैं, लोग डर से चिल्ला रहे हैं और भाग रहे हैं। रानी हैरान है। ये क्या हो रहा है? मेरे जीवन का पेड़, मेरी प्यारी प्रेमिका। अभी जो हुआ वह क्या था? ये सब स्नो क्वीन की लापरवाही का नतीजा है। सर्दियों का मौसम वास्तव में मानवता को राक्षसों से बचाने के लिए सुरक्षा बढ़ाने का समय होता है। इस कठिन कार्य को करने वाली कोई और नहीं बल्कि बर्फ की रानी है। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके गेट्स को बंद कर दिया और राक्षस को बर्फीले समुद्र में फंसा दिया। यह कार्य सैकड़ों वर्षों तक नियमित रूप से किया जाता है। लेकिन स्नो क्वीन के अचानक गायब होने की वजह से बर्फ का द्वार पिघल गया है और समुद्र तट अभी भी पिघल रहे हैं। राक्षस बाहर निकलते हैं। सैकड़ों वर्षों से मानवता को तबाह करने वाले प्रलयकारी तूफान को साथ लाते हैं। मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। मैं उसे मदद कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वसंत जल्दी आए और कई लोग भी चाहते हैं कि सर्दी जल्दी समाप्त हो। मैंने नींद लाने के लिए नारी चाव ट्वेट पर बजरी फूल पाउडर और 3 अन्य चीजें इस्तेमाल की। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है। अब और समय नहीं बचा है। जल्द से जल्द स्नो को जगाओ वरना पूरी जगह नष्ट हो जाएगी। तूफान के बाद बर्फ की महिला जाग उठी। मैं यहाँ क्यों लेटा हूँ? बुईडोंग, क्या तुम फिर से मुझे कैद करना चाहती हो, आलसी लड़की? हाँ, लगता है इस बार मुश्किल होगा। पीछे हटो। मैं कोई युद्ध देवी नहीं हूँ। ये काम तुम्हारा है। माफ करना दीदी, ये सब मेरी लालच के कारण हुआ। मैं गलती मानती हूँ। समय के साथ जल राक्षस ने रहस्यमयी शक्ति प्राप्त कर ली। लड़ाई बराबर की थी। जब तक हाँ,
दौड़ो, भाग जाओ, भाग जाओ। शुरुआत से ही भाग जाते तो कितना अच्छा होता ना। हे भगवान, तुम्हें मेरी जीत का इस तरह स्वागत करने की जरूरत नहीं है। वसंत देवी, अगर समझदार लोग मेरे सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो आछी आछी। स्नो क्वीन ने राक्षस को बर्फीले समुद्र में बंद कर दिया। सर्दी भी मानव दुनिया में लौट आई। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब कोई भी सर्दी के महत्व पर सवाल नहीं उठाता। उन्हें समझ में आया कि यह पृथ्वी और आकाश का संतुलन है। हर मौसम जीवन में अपनी अनूठी रंगत लाता है, जिससे यह और खूबसूरत हो जाता है।